This is the statement of theorem 6.2. So write down theorem number 6.2. This is also known as converse of BPT, basic proportionality theorem, converse, Thales theorem's converse. In this theorem, what is written? If a line is drawn, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर एक कोई लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, डी डिवाइड्स AB and AC in the ratio AD upon DB equal to AE upon EC. ये given. We have to prove that this line is parallel to BC. इससे पहले वाली थ्योरम में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या गिवन था कि लाइन पैरेलल थी. If a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. इसमें क्या है? अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड है. कोई लाइन है जो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि वो लाइन कैसी होगी? थर्ड साइड के पैरेलल होगी. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. सो वी हैव टू प्रूव दैट DE is parallel to this line. DE is parallel to BC. For proving this, we construct a line DF. एक लाइन हमने DF बनाई और DF को कंसीडर कर लिया कि वो BC के पैरेलल है. ठीक है, DE को क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया. वैसे देखें तो नहीं है, लेकिन अगर हम लेट कर लें तो है. समझ लो, अपने मन से मान लो कि DF क्या है? DF पैरेलल है. ठीक है, DF पैरेलल है, तो हम लोग अगर DF पैरेलल है, बिकॉज DF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि DF पैरेलल टू BC है. कहां से आया ये? बाई कंस्ट्रक्शन. तो क्या ले सकते हैं? BPT अप्लाई कर सकते हैं. बोलो, BPT लग सकती है इस ट्रायंगल में. अगर मैं इस ट्रायंगल में BPT लगाता हूं तो क्या लिखूंगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है. इफ अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then other two sides are divided in the same ratio. So AD upon DB equal to AF upon FC. This is the equation first. From here we get by BPT. Now another thing is given, that is AD upon DB equal to AE upon FC, AE upon EC. This is given from equation first and second. From equation first and second, AF upon FC equal to AE upon EC, adding one both sides. Adding one both sides. So AF upon FC plus 1 AE upon EC plus 1. We write down AF plus FC upon FC, AE EC upon EC. AF प्लस FC, अगर आप फिगर से देखो, ये था हम लोगों का फिगर.
तो इसमें हम लोग ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, इट बिकम्स एंड ए ई प्लस ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल, 1/FC 1/EC, तो FC इक्वल टू EC। FC किसके इक्वल है? FC इक्वल टू EC, और FC और EC अगर दोनों सेम है तो क्या होगा? तो ये वाली लाइन DF किस पे कॉन्साइड होगी या DE किस पे कॉन्साइड होगी? सो DE कॉन्साइड ऑन DF, और अगर DE DF पे कॉन्साइड हो रही तो DE भी तो पैरेलल है, बोलो 10 DE is parallel to BC, hence proved। Very important theorem, Pythagoras theorem. Theorem number 6.8. The statement of that theorem is, in a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. So it is given that ABC is a right angle triangle in which angle B equal to 90 degree. We have to prove that the side which is just opposite to 90 degree is called hypotenuse. So hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides. So we write down AC square equal to AB square plus BC square. We have to prove this. So for proving this, we construct something in the figure. Construction is, draw BM parallel to AC. Draw BM. Draw perpendicular from B to AC. So BM is perpendicular to AC. Now take two triangles. This triangle, in triangle ABC, and another triangle, one small triangle and one big triangle. Write down, in triangle ABC and triangle, अब ABC जब लिया है तो इसी तरह से हमें एक ट्रायंगल और लेना है, छोटा ट्रायंगल, लेकिन सिमिलर ऐसे होना चाहिए कि जो एंगल्स हो, अगर ए का ये एंगल और ये एंगल, तो इसी सीरियल से होना चाहिए दूसरे एंगल्स। तो यहां मैं लिख लूंगा इन ट्रायंगल AM AMB, ABC एंड ट्रायंगल AMB। तो अब इनको सीरियल से हम लोग लिखेंगे CAB, एंगल CAB इक्वल टू BAM। देखो CAB इक्वल टू BAM क्यों है? CAB देख लो, CAB और BAM कॉमन। एंगल ABC इक्वल टू, अब C को साइलेंट कर दो, A से राइट कर दो, AMB। ABC इक्वल टू AMB, 5 because of 90 degree. Therefore, triangle ABC is similar to triangle AMB by angle similarity criterion। जिस तरह से 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियंस पढ़ी थी, जो 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन थी, जस्ट लाइक 10th में सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। उनमें एक पहली सिमिलरिटी क्राइटेरियन AA है, फिर ट्रिपल A है, फिर SAS है, और SAS के बाद फिर एक जो और क्राइटेरियन है वो SSS है, 5वीं क्राइटेरियन RHS है। इस तरह से 5 सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। A क्राइटेरियन में क्या है कि any two triangles are similar if their two corresponding angles are
या एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, एनी थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, तो फिर वो क्या आ जाएगी, ट्रिपल ए लग जाएगी। तो यहाँ हम लोगों ने डबल ए अप्लाई की है, डबल ए से दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया है, सिमिलर, क्योंकि एक ट्रायंगल कॉमन है दोनों में, और एक एंगल दोनों में कॉमन है और एक एंगल दोनों में क्या है, 90 डिग्री। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल के कोई दो एंगल्स कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। We know that if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल। और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है तो हम लोग राइट कर देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम बी इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। Now we take any two ratios from three ratios which have the same numerator and denominator. ऐसे दो रेशियो को सिलेक्ट करेंगे जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम। तो ए बी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन, ये तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर सी ए अपॉन बी ए है तो बी ए को ए बी लिख दें तो ये दोनों मैच कर जाएंगे। तो मैं क्या ले लूं, ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू सी ए अपॉन बी ए। और इस सी ए अपॉन बी ए को और अच्छा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू, इसको भी आप क्या कर लो, इन्वर्ट कर लो, तो ए सी हो जाएगा और इसको ए बी, दोनों को इन्वर्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या गेट हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए एम। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी टेक अनदर टू ट्रायंगल्स, second smallest angle and one big triangle in triangle ABC and triangle। तो एक ट्रायंगल ABC लेना है, अब एंगल कौन सा कॉमन होगा, तो ऑर्डर देखो, BC सेकंड और थर्ड, तो सेकंड थर्ड है तो यहां भी हम लोगों को सेकंड थर्ड लेना है। सेकंड का मतलब MC, तो MCB, तो MC BMC क्या हो जाएगा, ठीक है, BMC जवाब लिख लेंगे, क्योंकि A और B इसमें ऐसे एंगल्स आ रहे हैं, BMC का B और ABC का A दोनों ही कुछ कॉमन नहीं है, बाकी ये दोनों 90 है, B और M, ठीक है। तो सीधा लिख देते हैं एंगल ABC इक्वल टू BMC बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, एंगल BCA इक्वल टू MCB, BCA इक्वल टू MCB कॉमन, therefore triangle ABC is similar to triangle BMC by angle similarity criterion। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो ए बी अपॉन बी एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम सी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, because if two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। फिर वही प्रोसीजर है, हमें ऐसी साइडें सिलेक्ट करनी है जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हो, तो ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं, सी बी सेम हो जाएगा, तो बी सी अपॉन एम सी इक्वल टू
सी ए अपॉन सी बी, बी सी अपॉन एम सी इक्वल टू सी ए को इन्वर्ट कर दो ए सी, ये भी कर दो बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एम सी, इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी राइट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एम प्लस ए सी इंटू ए सी ए एम प्लस एम सी, ए सी इंटू ए सी, क्या हो जाएगा ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस हैज प्रूव्ड। ठीक है, तो आप ये थ्योरम कंप्लीट करके आइएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी थ्योरम अच्छे से। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जरूर तैयार कर लें। सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी थ्योरम के आने के हैं